ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਜਾ हमारे माशरे में लड़की का तलाक का सुनकर यही सोचा जाता है कि सारा कसूर लड़की का होगा। तलाक को यह छूत की बीमारी नहीं जो दूसरों को लग जाएगी। क्यों बताया तुम प्रेग्नेंट हो? तुमने मेरा फोन क्यों उठाया? नफरत है मुझे तुमसे, जहर लगती हो तुम मुझे। इस शक्ल ने मेरी मां को फंसाया था ना। मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा, मुंह तोड़ दूंगा। मिल रहा हूं फरियाद से, शादी करना चाहता हूं उससे। ये मुआशरा एक डिवोर्स औरत को कबूल नहीं करता। तुम यहां मेरी बीवी बनकर रह सकती हो, मेरी मां के साथ, शानी के साथ। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो लोगों के लिए ये अछूत की बीमारी है। जो लोग दूसरों को खुश नहीं रखते ना, वो खुद कभी खुश नहीं रह सकते। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। इसीलिए मिस शकील का मूड इस कदर खराब है। परियाल, अब तुम्हें अम्मी का दिल जीतना हो। क्योंकि आपने मेरी खुशियां बर्बाद कर दी। कभी कभी अपना झूठ सच बनकर सामने आ जाता है और फिर उस सच पे कोई यकीन भी नहीं करता। तलाक का दाग तो कौन सा दाग? ऐसा क्या किया है मैंने फुप्पो जो दाग लग गया है मुझ पर? तलाक अगर दाग है, जुर्म है, सजा है तो इसका मुजरिम सिर्फ सैफ है, मैं नहीं। मेरा अब और क्या नुकसान होगा सैफ? मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। तुम अपनी खैर मना। तुम्हारी ये शादी बर्बादी में ना बदल गई ना, नाम बदल देना। मुश्किल से शादी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बेटी को मुसलसल मुश्किल में झोंक दूं। किरण ठीक कहती। अगर सैफ को इसकी कदर नहीं है तो मैं क्यों इसे जबरदस्ती उसके साथ। सैफ किरण की मौजूदगी में फरियाल से शादी कर लेते हैं और उसको घर ले आता है। तभी फरियाल उसे फोर्स करती है कि अब इस किरण का तुम्हारी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है और इसे तुम घर से बाहर निकालो। तभी वो उसका कहने पे फाइनली किरण को डाइवोर्स दे देता है। तो यहाँ पे जो सैफ की वालदा होती है वो फरियाल को कहती है कि जो लोग दूसरों की खुशियां छीनने की कोशिश करते हैं वो कभी भी खुश नहीं रह सकते और तुमने किरण के साथ अच्छा नहीं किया। और तभी वो मज़ीद ये भी कहते हैं कि हमारे माशरे में सारा इल्ज़ाम औरत के सर पे डाला जाता है कि शायद इसमें कोई ना कोई कमी थी और तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो तभी वो कहती है
کہ شاید اس لیے آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا اور آپ کا جھوٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ مزید آپ یہ دیکھیں گے کہ جو کرن کا والد ہوتا ہے وہ کرن کو کہتا ہے کہ بیٹا اب یہ تمہاری قسمت میں لکھا تھا اور تمہیں ہمیشہ ایسے ہی گزارا کرنا ہے، اور میں اب تم لوگوں کو مزید سپورٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے تو اپنا فرض نبھاتے ہوئے تمہاری اچھی جگہ شادی کی، اور اگر اب تمہیں ڈیورس ہو گئی ہے تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو تبھی وہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اپنا گزارا خود ہی کر لوں گی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو پھپھو ہوتی ہے وہ کرن کو تانا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہوتی ہیں ان کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی اور وہ سارا بلیم انہیں پہ جاتا ہے۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ قصوروار میں نہیں ہوں، اس کا سارا قصوروار سیف ہے، میں نے تو یہ شادی بچانے کی پوری کوشش کی، لیکن سیف ہی یہ شادی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اور آپ کو کیسا لگتا ہے یہ ڈرامہ سیریل؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، ساتھ میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ سیف کرن کی موجودگی میں فریال سے شادی کر لیتے ہیں اور اس کو گھر لے آتا ہے۔ تبھی فریال اسے فورس کرتی ہے کہ اب اس کرن کا تمہاری زندگی میں کوئی کام نہیں ہے اور تو اسے تم گھر سے باہر نکالو۔ تبھی وہ اس کا کہنے پہ فائنلی کرن کو ڈائیورس دے دیتا ہے۔ تو یہاں پہ جو سیف کی والدہ ہوتی ہے وہ فریال کو کہتی ہے کہ جو لوگ دوسروں کی خوشیاں چھیننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے، اور تم نے کرن کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اور تبھی وہ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سارا الزام عورت کے سر پہ ڈالا جاتا ہے کہ شاید اس میں کوئی نہ کوئی کمی تھی اور تم نے اس کی زندگی برباد کر دی ہے۔ تو تبھی وہ کہتی ہے کہ شاید اس لیے آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا اور آپ کا جھوٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ مزید آپ یہ دیکھیں گے کہ جو کرن کا والد ہوتا ہے وہ کرن کو کہتا ہے کہ بیٹا اب یہ تمہاری قسمت میں لکھا تھا اور تمہیں ہمیشہ ایسے ہی گزارا کرنا ہے، اور میں اب تم لوگوں کو مزید سپورٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے تو اپنا فرض نبھاتے ہوئے تمہاری اچھی جگہ شادی کی، اور اگر اب تمہیں ڈیورس ہو گئی ہے تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو تبھی وہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اپنا گزارا خود ہی کر لوں گی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو پھپھو ہوتی ہے وہ کرن کو تانا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہوتی ہیں ان کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی اور وہ سارا بلیم انہیں پہ جاتا ہے۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ قصوروار میں نہیں ہوں، اس کا سارا قصوروار سیف ہے، میں نے تو یہ شادی بچانے کی پوری کوشش کی، لیکن سیف ہی یہ شادی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اور آپ کو کیسا لگتا ہے یہ ڈرامہ سیریل؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، ساتھ میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ سیف کرن کی موجودگی میں فریال سے شادی کر لیتے ہیں اور اس کو گھر لے آتا ہے۔ تبھی فریال اسے فورس کرتی ہے کہ اب اس کرن کا تمہاری زندگی میں کوئی کام نہیں ہے اور تو اسے تم گھر سے باہر نکالو۔ تبھی وہ اس کا کہنے پہ فائنلی کرن کو ڈائیورس دے دیتا ہے۔ تو یہاں پہ جو سیف کی والدہ ہوتی ہے وہ فریال کو کہتی ہے کہ جو لوگ دوسروں کی خوشیاں چھیننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے، اور تم نے کرن کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اور تبھی وہ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سارا الزام عورت کے سر پہ ڈالا جاتا ہے کہ شاید اس میں کوئی نہ کوئی کمی تھی اور تم نے اس کی زندگی برباد کر دی ہے۔ تو تبھی وہ کہتی ہے کہ شاید اس لیے آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا اور آپ کا جھوٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ مزید آپ یہ دیکھیں گے کہ جو کرن کا والد ہوتا ہے وہ کرن کو کہتا ہے کہ بیٹا اب یہ تمہاری قسمت میں لکھا تھا اور تمہیں ہمیشہ ایسے ہی گزارا کرنا ہے، اور میں اب تم لوگوں کو مزید سپورٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے تو اپنا فرض نبھاتے ہوئے تمہاری اچھی جگہ شادی کی، اور اگر اب تمہیں ڈیورس ہو گئی ہے تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو تبھی وہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے،
मैं अपना गुजारा खुद ही कर लूंगी। मजीद आप देखेंगे कि जो फूफो होती है वो किरण को ताना देती है और कहती है कि जो तलाक याफ्ता औरतें होती हैं उनके माशरे में कोई इज्जत नहीं होती और वो सारा ब्लेम उन्हीं पे जाता है। तो तब वो कहती है कि कसूरवार मैं नहीं हूँ, इसका सारा कसूरवार सैफ है। मैंने तो ये शादी बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन सैफ ही ये शादी नहीं रखना चाहता था। दोस्तों आपको क्या लगता है और आपको कैसा लगता है ये ड्रामा सीरियल, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। सैफ किरण की मौजूदगी में फरियाल से शादी कर लेते हैं और उसको घर ले आता है। तभी फरियाल उसे फोर्स करती है कि अब इस किरण का तुम्हारी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है और तो इसे तुम घर से बाहर निकालो। तभी वो उसका कहने पे फाइनली किरण को डाइवोर्स दे देता है। तो यहाँ पे जो सैफ की वालदा होती है वो फरियाल को कहती है कि जो लोग दूसरों की खुशियां छीनने की कोशिश करते हैं वो कभी भी खुश नहीं रह सकते और तुमने किरण के साथ अच्छा नहीं किया। और तभी वो मजीद ये भी कहते हैं कि हमारे माशरे में सारा इल्ज़ाम औरत के सर पे डाला जाता है कि शायद इसमें कोई ना कोई कमी थी और तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो तभी वो कहती है कि शायद इसलिए आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा और आपका झूठ आपके सामने आ चुका है। मज़ीद आप ये देखेंगे कि जो किरण का वालिद होता है वो किरण को कहता है कि बेटा अब ये तुम्हारी किस्मत में लिखा था और तुम्हें हमेशा ऐसे ही गुजारा करना है और मैं अब तुम लोगों को मज़ीद सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तो अपना हक फर्ज निभाते हुए तुम्हारी अच्छी जगह शादी की और अगर अब तुम्हें डिवोर्स हो गई है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो तभी वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं अपना गुजारा खुद ही कर लूंगी। मजीद आप देखेंगे कि जो फूफो होती है वो किरण को ताना देती है और कहती है कि जो तलाक याफ्ता औरतें होती हैं उनके माशरे में कोई इज्जत नहीं होती और वो सारा ब्लेम उन्हीं पे जाता है। तो तब वो कहती है कि कसूरवार मैं नहीं हूँ, इसका सारा कसूरवार सैफ है। मैंने तो ये शादी बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन सैफ ही ये शादी नहीं रखना चाहता था। दोस्तों आपको क्या लगता है और आपको कैसा लगता है ये ड्रामा सीरियल, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। सैफ किरण की मौजूदगी में फरियाल से शादी कर लेते हैं और उसको घर ले आता है। तभी फरियाल उसे फोर्स करती है कि अब इस किरण का तुम्हारी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है और तो इसे तुम घर से बाहर निकालो। तभी वो उसका कहने पे फाइनली किरण को डाइवोर्स दे देता है। तो यहाँ पे जो सैफ की वालदा होती है वो फरियाल को कहती है कि जो लोग दूसरों की खुशियां छीनने की कोशिश करते हैं वो कभी भी खुश नहीं रह सकते और तुमने किरण के साथ अच्छा नहीं किया। और तभी वो मजीद ये भी कहते हैं कि हमारे माशरे में सारा इल्ज़ाम औरत के सर पे डाला जाता है कि शायद इसमें कोई ना कोई कमी थी और तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो तभी वो कहती है कि शायद इसलिए आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा और आपका झूठ आपके सामने आ चुका है। मज़ीद आप ये देखेंगे कि जो किरण का वालिद होता है वो किरण को कहता है कि बेटा अब ये तुम्हारी किस्मत में लिखा था और तुम्हें हमेशा ऐसे ही गुजारा करना है और मैं अब तुम लोगों को मज़ीद सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तो अपना हक फर्ज निभाते हुए तुम्हारी अच्छी जगह शादी की और अगर अब तुम्हें डिवोर्स हो गई है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो तभी वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं अपना गुजारा खुद ही कर लूंगी। मजीद आप देखेंगे कि जो फूफो होती है वो किरण को ताना देती है और कहती है कि जो तलाक याफ्ता औरतें होती हैं उनके माशरे में कोई इज्जत नहीं होती और वो सारा ब्लेम उन्हीं पे जाता है। तो तब वो कहती है कि कसूरवार मैं नहीं हूँ, इसका सारा कसूरवार सैफ है। मैंने तो ये शादी बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन सैफ ही ये शादी नहीं रखना चाहता था। दोस्तों आपको क्या लगता है और आपको कैसा लगता है ये ड्रामा सीरियल, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।
सैफ किरण की मौजूदगी में फरियाल से शादी कर लेते हैं और उसको घर ले आता है। तभी फरियाल उसे फोर्स करती है कि अब इस किरण का तुम्हारी जिंदगी में कोई काम नहीं है और तो इसे तुम घर से बाहर निकालो। तभी वो उसके कहने पे फाइनली किरण को डाइवोर्स दे देता है। तो यहाँ पे जो सैफ की वालदा होती है वो फरियाल को कहती है कि जो लोग दूसरों की खुशियां छीनने की कोशिश करते हैं वो कभी भी खुश नहीं रह सकते और तुमने किरण के साथ अच्छा नहीं किया। और तभी वो मजीद ये भी कहते हैं कि हमारे माशरे में सारा इल्ज़ाम औरत के सर पे डाला जाता है कि शायद इसमें कोई ना कोई कमी थी और तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो तभी वो कहती है कि शायद इसलिए आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा और आपका झूठ आपके सामने आ चुका है। मज़ीद आप ये देखेंगे कि जो किरण का वालिद होता है वो किरण को कहता है कि बेटा अब ये तुम्हारी किस्मत में लिखा था और तुम्हें हमेशा ऐसे ही गुजारा करना है और मैं अब तुम लोगों को मज़ीद सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तो अपना हक फर्ज निभाते हुए तुम्हारी अच्छी जगह शादी की और अगर अब तुम्हें डिवोर्स हो गई है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो तभी वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं अपना गुजारा खुद ही कर लूँगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जो फूफो होती है वो किरण को ताना देती है और कहती है कि जो तलाक याफ्ता औरतें होती हैं उनके माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं होती और वो सारा ब्लेम उन्हीं पे जाता है। तो तब वो कहती है कि कसूरवार मैं नहीं हूँ, इसका सारा कसूरवार सैफ है। मैंने तो ये शादी बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन सैफ ही ये शादी नहीं रखना चाहता था। दोस्तों आपको क्या लगता है और आपको कैसा लगता है ये ड्रामा सीरियल, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। सैफ किरण की मौजूदगी में फरियाल से शादी कर लेते हैं और उसको घर ले आता है। तभी फरियाल उसे फोर्स करती है कि अब इस किरण का तुम्हारी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है और तो इसे तुम घर से बाहर निकालो। तभी वो उसका कहने पे फाइनली किरण को डाइवोर्स दे देता है। तो यहाँ पे जो सैफ की वालदा होती है वो फरियाल को कहती है कि जो लोग दूसरों की खुशियां छीनने की कोशिश करते हैं वो कभी भी खुश नहीं रह सकते और तुमने किरण के साथ अच्छा नहीं किया। और तभी वो मजीद ये भी कहते हैं कि हमारे माशरे में सारा इल्ज़ाम औरत के सर पे डाला जाता है कि शायद इसमें कोई ना कोई कमी थी और तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो तभी वो कहती है कि शायद इसलिए आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा और आपका झूठ आपके सामने आ चुका है। मज़ीद आप ये देखेंगे कि जो किरण का वालिद होता है वो किरण को कहता है कि बेटा अब ये तुम्हारी किस्मत में लिखा था और तुम्हें हमेशा ऐसे ही गुजारा करना है और मैं अब तुम लोगों को मज़ीद सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तो अपना हक फर्ज निभाते हुए तुम्हारी अच्छी जगह शादी की और अगर अब तुम्हें डिवोर्स हो गई है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो तभी वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं अपना गुजारा खुद ही कर लूँगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जो फूफो होती है वो किरण को ताना देती है और कहती है कि जो तलाक याफ्ता औरतें होती हैं उनके माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं होती और वो सारा ब्लेम उन्हीं पे जाता है। तो तब वो कहती है कि कसूरवार मैं नहीं हूँ, इसका सारा कसूरवार सैफ है। मैंने तो ये शादी बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन सैफ ही ये शादी नहीं रखना चाहता था। दोस्तों आपको क्या लगता है और आपको कैसा लगता है ये ड्रामा सीरियल, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। सैफ किरण की मौजूदगी में फरियाल से शादी कर लेते हैं और उसको घर ले आता है। तभी फरियाल उसे फोर्स करती है कि अब इस किरण का तुम्हारी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है और तो इसे तुम घर से बाहर निकालो। तभी वो उसका कहने पे फाइनली किरण को डाइवोर्स दे देता है। तो यहाँ पे जो सैफ की वालदा होती है वो फरियाल को कहती है कि जो लोग दूसरों की खुशियां छीनने की कोशिश करते हैं वो कभी भी खुश नहीं रह सकते और तुमने किरण के साथ अच्छा नहीं किया।
اور تبھی وہ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سارا الزام عورت کے سر پہ ڈالا جاتا ہے کہ شاید اس میں کوئی نہ کوئی کمی تھی اور تم نے اس کی زندگی برباد کر دی ہے۔ تو تبھی وہ کہتی ہے کہ شاید اس لیے آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا اور آپ کا جھوٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ مزید آپ یہ دیکھیں گے کہ جو کرن کا والد ہوتا ہے وہ کرن کو کہتا ہے کہ بیٹا اب یہ تمہاری قسمت میں لکھا تھا اور تمہیں ہمیشہ ایسے ہی گزارا کرنا ہے، اور میں اب تم لوگوں کو مزید سپورٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے تو اپنا فرض نبھاتے ہوئے تمہاری اچھی جگہ شادی کی، اور اگر اب تمہیں ڈیورس ہو گئی ہے تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو تبھی وہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اپنا گزارا خود ہی کر لوں گی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو پھپھو ہوتی ہے وہ کرن کو تانا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی اور وہ سارا بلیم انہیں پہ جاتا ہے۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ قصوروار میں نہیں ہوں، اس کا سارا قصوروار سیف ہے، میں نے تو یہ شادی بچانے کی پوری کوشش کی لیکن سیف ہی یہ شادی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اور آپ کو کیسا لگتا ہے یہ ڈرامہ سیریل؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، ساتھ میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ سیف کرن کی موجودگی میں فریال سے شادی کر لیتے ہیں اور اس کو گھر لے آتا ہے۔ تبھی فریال اسے فورس کرتی ہے کہ اب اس کرن کا تمہاری زندگی میں کوئی کام نہیں ہے اور تو اسے تم گھر سے باہر نکالو۔ تبھی وہ اس کا کہنے پہ فائنلی کرن کو ڈائیورس دے دیتا ہے۔ تو یہاں پہ جو سیف کی والدہ ہوتی ہے وہ فریال کو کہتی ہے کہ جو لوگ دوسروں کی خوشیاں چھیننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے، اور تم نے کرن کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اور تبھی وہ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سارا الزام عورت کے سر پہ ڈالا جاتا ہے کہ شاید اس میں کوئی نہ کوئی کمی تھی اور تم نے اس کی زندگی برباد کر دی ہے۔ تو تبھی وہ کہتی ہے کہ شاید اس لیے آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا اور آپ کا جھوٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ مزید آپ یہ دیکھیں گے کہ جو کرن کا والد ہوتا ہے وہ کرن کو کہتا ہے کہ بیٹا اب یہ تمہاری قسمت میں لکھا تھا اور تمہیں ہمیشہ ایسے ہی گزارا کرنا ہے، اور میں اب تم لوگوں کو مزید سپورٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے تو اپنا فرض نبھاتے ہوئے تمہاری اچھی جگہ شادی کی، اور اگر اب تمہیں ڈیورس ہو گئی ہے تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو تبھی وہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اپنا گزارا خود ہی کر لوں گی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو پھپھو ہوتی ہے وہ کرن کو تانا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی اور وہ سارا بلیم انہیں پہ جاتا ہے۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ قصوروار میں نہیں ہوں، اس کا سارا قصوروار سیف ہے، میں نے تو یہ شادی بچانے کی پوری کوشش کی لیکن سیف ہی یہ شادی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اور آپ کو کیسا لگتا ہے یہ ڈرامہ سیریل؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، ساتھ میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ سیف کرن کی موجودگی میں فریال سے شادی کر لیتے ہیں اور اس کو گھر لے آتا ہے۔ تبھی فریال اسے فورس کرتی ہے کہ اب اس کرن کا تمہاری زندگی میں کوئی کام نہیں ہے اور تو اسے تم گھر سے باہر نکالو۔ تبھی وہ اس کا کہنے پہ فائنلی کرن کو ڈائیورس دے دیتا ہے۔ تو یہاں پہ جو سیف کی والدہ ہوتی ہے وہ فریال کو کہتی ہے کہ جو لوگ دوسروں کی خوشیاں چھیننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے، اور تم نے کرن کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اور تبھی وہ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سارا الزام عورت کے سر پہ ڈالا جاتا ہے کہ شاید اس میں کوئی نہ کوئی کمی تھی اور تم نے اس کی زندگی برباد کر دی ہے۔ تو تبھی وہ کہتی ہے کہ شاید اس لیے آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا اور آپ کا جھوٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ مزید آپ یہ دیکھیں گے کہ جو
किरण का वालिद होता है वो किरण को कहता है कि बेटा अब ये तुम्हारी किस्मत में लिखा था और तुम्हें हमेशा ऐसे ही गुजारा करना है, और मैं अब तुम लोगों को मज़ीद सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तो अपना फ़र्ज निभाते हुए तुम्हारी अच्छी जगह शादी की, और अगर अब तुम्हें डिवोर्स हो गई है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो तभी वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं अपना गुजारा खुद ही कर लूँगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जो फूफो होती है वो किरण को ताना देती है और कहती है कि जो तलाक याफ्ता औरतें होती हैं उनके माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं होती, और वो सारा ब्लेम उन्हीं पे जाता है। तो तब वो कहती है कि कसूरवार मैं नहीं हूँ, इसका सारा कसूरवार सैफ है। मैंने तो ये शादी बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सैफ ही ये शादी नहीं रखना चाहता था। दोस्तों, आपको क्या लगता है और आपको कैसा लगता है ये ड्रामा सीरियल, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। सैफ किरण की मौजूदगी में फरियाल से शादी कर लेते हैं और उसको घर ले आता है। तभी फरियाल उसे फोर्स करती है कि अब इस किरण का तुम्हारी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है और तो इसे तुम घर से बाहर निकालो। तभी वो उसका कहने पे फाइनली किरण को डाइवोर्स दे देता है। तो यहाँ पे जो सैफ की वालदा होती है वो फरियाल को कहती है कि जो लोग दूसरों की खुशियां छीनने की कोशिश करते हैं वो कभी भी खुश नहीं रह सकते, और तुमने किरण के साथ अच्छा नहीं किया। और तभी वो मज़ीद ये भी कहते हैं कि हमारे माशरे में सारा इल्ज़ाम औरत के सर पे डाला जाता है कि शायद इसमें कोई ना कोई कमी थी और तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो तभी वो कहती है कि शायद इसलिए आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा और आपका झूठ आपके सामने आ चुका है। मज़ीद आप ये देखेंगे कि जो किरण का वालिद होता है वो किरण को कहता है कि बेटा अब ये तुम्हारी किस्मत में लिखा था और तुम्हें हमेशा ऐसे ही गुजारा करना है, और मैं अब तुम लोगों को मज़ीद सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तो अपना फ़र्ज निभाते हुए तुम्हारी अच्छी जगह शादी की, और अगर अब तुम्हें डिवोर्स हो गई है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो तभी वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं अपना गुजारा खुद ही कर लूँगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जो फूफो होती है वो किरण को ताना देती है और कहती है कि जो तलाक याफ्ता औरतें होती हैं उनके माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं होती, और वो सारा ब्लेम उन्हीं पे जाता है। तो तब वो कहती है कि कसूरवार मैं नहीं हूँ, इसका सारा कसूरवार सैफ है। मैंने तो ये शादी बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सैफ ही ये शादी नहीं रखना चाहता था। दोस्तों, आपको क्या लगता है और आपको कैसा लगता है ये ड्रामा सीरियल, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। सैफ किरण की मौजूदगी में फरियाल से शादी कर लेते हैं और उसको घर ले आता है। तभी फरियाल उसे फोर्स करती है कि अब इस किरण का तुम्हारी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है और तो इसे तुम घर से बाहर निकालो। तभी वो उसका कहने पे फाइनली किरण को डाइवोर्स दे देता है। तो यहाँ पे जो सैफ की वालदा होती है वो फरियाल को कहती है कि जो लोग दूसरों की खुशियां छीनने की कोशिश करते हैं वो कभी भी खुश नहीं रह सकते, और तुमने किरण के साथ अच्छा नहीं किया। और तभी वो मज़ीद ये भी कहते हैं कि हमारे माशरे में सारा इल्ज़ाम औरत के सर पे डाला जाता है कि शायद इसमें कोई ना कोई कमी थी और तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो तभी वो कहती है कि शायद इसलिए आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा और आपका झूठ आपके सामने आ चुका है। मज़ीद आप ये देखेंगे कि जो किरण का वालिद होता है वो किरण को कहता है कि बेटा अब ये तुम्हारी किस्मत में लिखा था और तुम्हें हमेशा ऐसे ही गुजारा करना है, और मैं अब तुम लोगों को मज़ीद सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तो अपना फ़र्ज निभाते हुए तुम्हारी अच्छी जगह शादी की, और अगर अब तुम्हें डिवोर्स हो गई है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो तभी वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं अपना गुजारा खुद ही कर लूँगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जो फूफो होती है वो किरण को ताना देती है और कहती है कि जो तलाक याफ्ता औरतें होती हैं उनके माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं होती,
اور وہ سارا بلیم انہیں پہ جاتا ہے تو تب وہ کہتی ہے کہ قصوروار میں نہیں ہوں، اس کا سارا قصوروار سیف ہے، میں نے تو یہ شادی بچانے کی پوری کوشش کی لیکن سیف ہی یہ شادی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اور آپ کو کیسا لگتا ہے یہ ڈرامہ سیریل؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، ساتھ میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ سیف کرن کی موجودگی میں فریال سے شادی کر لیتا ہے اور اس کو گھر لے آتا ہے، تبھی فریال اسے فورس کرتی ہے کہ اب اس کرن کا تمہاری زندگی میں کوئی کام نہیں ہے اور اسے تم گھر سے باہر نکالو۔ تبھی وہ اس کا کہنے پہ فائنلی کرن کو ڈائیورس دے دیتا ہے۔ تو یہاں پہ جو سیف کی والدہ ہوتی ہے وہ فریال کو کہتی ہے کہ جو لوگ دوسروں کی خوشیاں چھیننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے اور تم نے کرن کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اور تبھی وہ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سارا الزام عورت کے سر پہ ڈالا جاتا ہے کہ شاید اس میں کوئی نہ کوئی کمی تھی اور تم نے اس کی زندگی برباد کر دی ہے۔ تو تبھی وہ کہتی ہے کہ شاید اس لیے آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا اور آپ کا جھوٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ مزید آپ یہ دیکھیں گے کہ جو کرن کا والد ہوتا ہے وہ کرن کو کہتا ہے کہ بیٹا اب یہ تمہاری قسمت میں لکھا تھا اور تمہیں ہمیشہ ایسے ہی گزارا کرنا ہے اور میں اب تم لوگوں کو مزید سپورٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے تو اپنا فرض نبھاتے ہوئے تمہاری اچھی جگہ شادی کی اور اگر اب تمہیں ڈیورس ہو گئی ہے تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو تبھی وہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اپنا گزارا خود ہی کر لوں گی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو پھوپھو ہوتی ہے وہ کرن کو تانا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہوتی ہیں ان کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی اور وہ سارا بلیم انہیں پہ جاتا ہے۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ قصوروار میں نہیں ہوں، اس کا سارا قصوروار سیف ہے، میں نے تو یہ شادی بچانے کی پوری کوشش کی لیکن سیف ہی یہ شادی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اور آپ کو کیسا لگتا ہے یہ ڈرامہ سیریل؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، ساتھ میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ سیف کرن کی موجودگی میں فریال سے شادی کر لیتے ہیں اور اس کو گھر لے آتا ہے، تبھی فریال اسے فورس کرتی ہے کہ اب اس کرن کا تمہاری زندگی میں کوئی کام نہیں ہے اور اسے تم گھر سے باہر نکالو۔ تبھی وہ اس کا کہنے پہ فائنلی کرن کو ڈائیورس دے دیتا ہے۔ تو یہاں پہ جو سیف کی والدہ ہوتی ہے وہ فریال کو کہتی ہے کہ جو لوگ دوسروں کی خوشیاں چھیننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے اور تم نے کرن کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اور تبھی وہ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سارا الزام عورت کے سر پہ ڈالا جاتا ہے کہ شاید اس میں کوئی نہ کوئی کمی تھی اور تم نے اس کی زندگی برباد کر دی ہے۔ تو تبھی وہ کہتی ہے کہ شاید اس لیے آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا اور آپ کا جھوٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ مزید آپ یہ دیکھیں گے کہ جو کرن کا والد ہوتا ہے وہ کرن کو کہتا ہے کہ بیٹا اب یہ تمہاری قسمت میں لکھا تھا اور تمہیں ہمیشہ ایسے ہی گزارا کرنا ہے اور میں اب تم لوگوں کو مزید سپورٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے تو اپنا فرض نبھاتے ہوئے تمہاری اچھی جگہ شادی کی اور اگر اب تمہیں ڈیورس ہو گئی ہے تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو تبھی وہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اپنا گزارا خود ہی کر لوں گی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو پھوپھو ہوتی ہے وہ کرن کو تانا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہوتی ہیں ان کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی اور وہ سارا بلیم انہیں پہ جاتا ہے۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ قصوروار میں نہیں ہوں، اس کا سارا قصوروار سیف ہے، میں نے تو یہ شادی بچانے کی پوری کوشش کی لیکن سیف ہی یہ شادی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اور آپ کو کیسا لگتا ہے یہ ڈرامہ سیریل؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، ساتھ میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔
सैफ किरण की मौजूदगी में फरियाल से शादी कर लेते हैं और उसको घर ले आता है। तभी फरियाल उसे फोर्स करती है कि अब इस किरण का तुम्हारी जिंदगी में कोई काम नहीं है और तो इसे तुम घर से बाहर निकालो। तभी वो उसके कहने पे फाइनली किरण को डाइवोर्स दे देता है। तो यहाँ पे जो सैफ की वालदा होती है वो फरियाल को कहती है कि जो लोग दूसरों की खुशियां छीनने की कोशिश करते हैं वो कभी भी खुश नहीं रह सकते और तुमने किरण के साथ अच्छा नहीं किया। और तभी वो मजीद ये भी कहते हैं कि हमारे माशरे में सारा इल्ज़ाम औरत के सर पे डाला जाता है कि शायद इसमें कोई ना कोई कमी थी और तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो तभी वो कहती है कि शायद इसलिए आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा और आपका झूठ आपके सामने आ चुका है। मजीद आप ये देखेंगे कि जो किरण का वालिद होता है वो किरण को कहता है कि बेटा अब ये तुम्हारी किस्मत में लिखा था और तुम्हें हमेशा ऐसे ही गुजारा करना है और मैं अब तुम लोगों को मजीद सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तो अपना हक फर्ज निभाते हुए तुम्हारी अच्छी जगह शादी की और अगर अब तुम्हें डिवोर्स हो गई है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो तभी वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं अपना गुजारा खुद ही कर लूंगी। मजीद आप देखेंगे कि जो फूफो होती है वो किरण को ताना देती है और कहती है कि जो तलाक याफ्ता औरतें होती हैं उनकी माशरे में कोई इज्जत नहीं होती और वो सारा ब्लेम उन्हीं पे जाता है। तो तब वो कहती है कि कसूरवार मैं नहीं हूँ, इसका सारा कसूरवार सैफ है। मैंने तो ये शादी बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन सैफ ही ये शादी नहीं रखना चाहता था। दोस्तों आपको क्या लगता है और आपको कैसा लगता है ये ड्रामा सीरियल, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। सैफ किरण की मौजूदगी में फरियाल से शादी कर लेते हैं और उसको घर ले आता है। तभी फरियाल उसे फोर्स करती है कि अब इस किरण का तुम्हारी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है और तो इसे तुम घर से बाहर निकालो। तभी वो उसका कहने पे फाइनली किरण को डाइवोर्स दे देता है। तो यहाँ पे जो सैफ की वालदा होती है वो फरियाल को कहती है कि जो लोग दूसरों की खुशियां छीनने की कोशिश करते हैं वो कभी भी खुश नहीं रह सकते और तुमने किरण के साथ अच्छा नहीं किया। और तभी वो मजीद ये भी कहते हैं कि हमारे माशरे में सारा इल्ज़ाम औरत के सर पे डाला जाता है कि शायद इसमें कोई ना कोई कमी थी और तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो तभी वो कहती है कि शायद इसलिए आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा और आपका झूठ आपके सामने आ चुका है। मजीद आप ये देखेंगे कि जो किरण का वालिद होता है वो किरण को कहता है कि बेटा अब ये तुम्हारी किस्मत में लिखा था और तुम्हें हमेशा ऐसे ही गुजारा करना है और मैं अब तुम लोगों को मजीद सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तो अपना हक फर्ज निभाते हुए तुम्हारी अच्छी जगह शादी की और अगर अब तुम्हें डिवोर्स हो गई है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो तभी वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं अपना गुजारा खुद ही कर लूंगी। मजीद आप देखेंगे कि जो फूफो होती है वो किरण को ताना देती है और कहती है कि जो तलाक याफ्ता औरतें होती हैं उनकी माशरे में कोई इज्जत नहीं होती और वो सारा ब्लेम उन्हीं पे जाता है। तो तब वो कहती है कि कसूरवार मैं नहीं हूँ, इसका सारा कसूरवार सैफ है। मैंने तो ये शादी बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन सैफ ही ये शादी नहीं रखना चाहता था। दोस्तों आपको क्या लगता है और आपको कैसा लगता है ये ड्रामा सीरियल, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। सैफ किरण की मौजूदगी में फरियाल से शादी कर लेते हैं और उसको घर ले आता है। तभी फरियाल उसे फोर्स करती है कि अब इस किरण का तुम्हारी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है और तो इसे तुम घर से बाहर निकालो। तभी वो उसका कहने पे फाइनली किरण को डाइवोर्स दे देता है। तो यहाँ पे जो सैफ की वालदा होती है वो फरियाल को कहती है कि जो लोग दूसरों की खुशियां छीनने की कोशिश करते हैं वो कभी भी खुश नहीं रह सकते और तुमने किरण के साथ अच्छा नहीं किया।
اور تبھی وہ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سارا الزام عورت کے سر پہ ڈالا جاتا ہے کہ شاید اس میں کوئی نہ کوئی کمی تھی اور تم نے اس کی زندگی برباد کر دی ہے۔ تو تبھی وہ کہتی ہے کہ شاید اس لیے آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا اور آپ کا جھوٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ مزید آپ یہ دیکھیں گے کہ جو کرن کا والد ہوتا ہے وہ کرن کو کہتا ہے کہ بیٹا اب یہ تمہاری قسمت میں لکھا تھا اور تمہیں ہمیشہ ایسے ہی گزارا کرنا ہے، اور میں اب تم لوگوں کو مزید سپورٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے تو اپنا حق فرض نبھاتے ہوئے تمہاری اچھی جگہ شادی کی، اور اگر اب تمہیں ڈیورس ہو گئی ہے تو اس میں